Dear students, Assalamu alaikum. As you know, we have already started our chapter number 13, Features and Movement of the Earth and Their Effects. We have started this chapter last time and we have done shapes, about the shape of the earth, about the tilt of the earth, and because of this tilt and shape, what's happened in our world, how the seasons comes, how the day and night goes. This all we have done. स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 13 फीचर्स एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ और एंड देयर इफेक्ट के बारे में स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, उसकी हमने पहले अर्थ की शेप को तफसील से पढ़ा, फिर जो उसकी पोजीशन है एटमॉस्फेयर में और जिस तरीके से वो घूम रही है और उससे होने वाले जो असरात हैं यानी दिन रात और मौसम, इसके बारे में पढ़ा। आज हम पेज नंबर 55 स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। The earth is constantly in motion and moves in two different ways. One movement is called rotation and the other is called revolution. So earth moves in two different ways. दो तरह से ज़मीन जो है वो घूम रही है। And the first movement is it's moving itself. खुद घूम रही है चारों तरफ। And the other is revolution, that is around the sun. और दूसरी मूवमेंट कौन सी है? सूरज के चारों तरफ जो घूम रही है ज़मीन। तो ये दो तरह की मूवमेंट हैं जो मुस्तकिल तौर पर हमारी दुनिया जो है वो कर रही है। ठीक है, द अर्थ इज़ मूविंग इन टू वेज, वन इज़ कॉल्ड रोटेशन एंड अदर इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रोटेशन? रोटेशन मीन्स द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप एंड इज गोज अराउंड द सन. This is called rotation. It takes 24 hours for the earth to make one complete rotation. During rotation, half of the earth faces the sun while the other side faces away from it. This is how we get night and day. So what is the first movement of the earth? That is rotation. And rotation means that earth is moving itself like a top. This movement is called rotation. And how much time it will take? It will take 24 hours. When the side which faces the sun during this movement faces daytime, and when the side which do not faces the sun in between this time faces the night time. और इस तरह से ज़मीन जो है वो दो तरह की मूवमेंट कर रही है। एक तो वो लट्टू की तरह ख़ुद घूम रही है जिसको रोटेशन कहते हैं। 24 घंटे में ये सारा जो उसकी रोटेशन है उसका अमल कंप्लीट होता है। जितनी देर सूरज का जो हिस्सा ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने रहता है वहाँ दिन रहता है, सुबह से लेकर शाम रात तक का टाइम होता है। और जो हिस्सा दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ सूरज फेस नहीं कर रहा, वो ज़मीन जहाँ सूरज फेस नहीं कर रही वहाँ पे रात का टाइम शुरू होता है और ख़त्म होता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द रेवोल्यूशन, द सेकेंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज़ ऑल्सो सर्कलिंग अराउंड द सन. द सर्कलिंग और ऑर्बिटिंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन. इट टेक्स द अर्थ 365 and 1/4 days or 1 year to complete one revolution around the sun. Now the second movement, that is called revolution. The earth is circling around the sun, moving around the sun. पहले बताया आपको कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द भी घूम रही है ना. And this circling or moving of the earth is called revolution. How much time it will take? It will take 365 and 1/4 days, means one whole year to complete the revolution around the sun. सूरज के गिर्द ज़मीन को पूरे तरीके से घूमने के लिए ये पूरा एक साल लगता है, यानी 365 1/4 डेज़ लगते हैं. तो ये होती है रेवोल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज solstices and equinoxes. Now what is these two things? Let's see. Revolution along with the tilt and bulge of the earth gives us season
solstices and equinox. The movement of the earth around the sun, or this movement because of its tilt. Tilt means the north pole and the south pole is not at the top and the bottom in a horizontal line. It is about 30 डिग्री. ज़मीन जो फ़िज़ा में मौजूद है उसमें अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप चेक करें, जगह जगह यहाँ पे फिगर्स बनी हुई हैं, पेजेस आप देख रहे हो. इसकी जो शेप, जो जिस तरीके से ये मौजूद है फ़िज़ा में, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है, बल्कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है. अब ये एक ख़ास पोजीशन अल्लाह ताला ने रखी है. इसके ज़रिए ही हम ज़मीन पर मुख्तलिफ़ मौसम जो तब्दील होते हैं, जो ज़मीन एक टाइम ऐसा आता है कि दिन रात बराबर भी हो जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सीज़न्स के साथ साथ, मौसम के साथ साथ और भी चीज़ें फ़ेस करती है. बहरहाल, study the position of the earth at 4 different times of the year. Notice the position of the overhead sun in each stage. What we can see. So what I have just read कि according to the position of the earth 4 different times in a year, these are the following things happen. ज़मीन जो है ना वो अपनी पोजीशन की वजह से, जिस तरह मूवमेंट की वजह से जो 4 डिफरेंट चीज़ें हम ज़मीन में महसूस करते हैं वो किस तरह होती है. वी कैन सी द ओवरहेड सन ऑन द इक्वेटर इन मार्च एंड सेप्टेम्बर. जब इक्वेटर, क्या बताया जा रहा है, मार्च और सितंबर में बिल्कुल सूरज हमारे ऊपर होता है. द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर इन जून, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जून के महीने में ऐसा होता है. एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन दिसंबर, और ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन में क्या होता है, दिसंबर के महीने में ऐसा होता है कि सूरज बिल्कुल ऊपर होता है उनके. एंड वी आर लिविंग इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है, ये जहन में रखिएगा. और इक्वेटर से भी हम ज़रा करीब ही हैं. जी जनाब. Now what the next heading is, what is an equinox? इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं. Coming from the Latin word equi means equal and nox meaning night. Equinox means equal night. It is one of the 2 dates in the year when the duration of the day and night is equal. This happens on March 21st, 22 and September 22, 23rd. Because of overhead sun is on the equator, and the equator divides the earth into 2 halves. Now what is equinox? It is a Latin word. Half, equi means equal and nox means night. Now what's happened in our earth? The 2 times in a year, at the date of 21st March 22nd and September 22nd and 23rd, what's happened? The sun comes directly overhead on the equator. Equator which divides the earth into 2 halves. क्या बताया इस पैराग्राफ में कि इक्विनॉक्स एक लातीनी लफ्ज़ है. इक्वी का मतलब है इक्वल और नॉक्स का मतलब है रात. यानी कोई 2 दिन ऐसे होते हैं पूरी दुनिया में कि रात और दिन के टाइम बिल्कुल बराबर हो जाता है, यानी दोनों एक बराबर हो जाती हैं. और ये कब कब होता है? मार्च 21st, 22nd को, और सितंबर में 22nd और 23rd को. ठीक है. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 56. अब 56 नंबर पेज पर आ जाइए आप भी मेरे साथ साथ. Now at the top of the page you are seeing a diagram. ऊपर आप देखिए एक डायग्राम नज़र आ रही है आपको. इसके अंदर बीच में सूरज है, चारों तरफ दुनिया घूमती हुई दिखाई दी गई है, कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ गई है, और उसमें डेट लिखी हुई है एक नीचे कि स्प्रिंग का सीज़न 21 मार्च है. देखिए समर सॉल्स्टिस यानी 21 जून को. फिर उसके बाद विंटर सॉल्स्टिस बताई गई है आपको 22 जून को.
और 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स है। तो दोनों इक्विनॉक्स और दोनों सॉल्स्टिसेस के बारे में आपको इसमें डायग्राम के ज़रिए समझाया गया है। नाउ स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मार्च 21, 22 विल बी ऑटम इक्विनॉक्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होता है, एक बराबर दिन रात जो होती है वो कब होती है, बाहर के मौसम में होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21, 22 मार्च को, और ऑटम के महीने में, ऑटम के सीज़न में होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है ना, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर आपको पता है कि इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। और ऑटम इक्विनॉक्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है 22, 23 सितंबर को, और स्प्रिंग ऑफ इक्विनॉक्स होती है कब, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है जनाब। अच्छा जी, नाउ पाकिस्तान इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हेन इट विल एक्सपीरियंस द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो हमें स्प्रिंग इक्विनॉक्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया इज़ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में। व्हेन विल इट एक्सपीरियंस द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और इसका स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वो कब होता है, ऑस्ट्रेलिया का साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो इसका स्प्रिंग के मौसम में इक्विनॉक्स होता है। ओके, नाउ व्हाट इज सॉल्स्टिस। अब ज़रा सॉल्स्टिस को भी समझ लें, इक्विनॉक्स को तो आप लोगों ने समझ लिया अच्छी तरह। अ सॉल्स्टिस इज़ अ पीरियड ऑफ unequal day and night, the two dates when we have the longest day and shortest night, and the shortest day and the longest night. In the northern hemisphere we have summer solstice, longest day, shortest night, and on June 21st, 22nd the winter solstice, means shortest day and longest night on December 21st, 22. Now what is a solstice? A solstice is a period when we have very unequal day and night. Means the day will be very long and the night will be very short, and on the second time the day will be very short and the night will be very long. Now we have summer solstice, in which we have a very long day and a very short night, and on June 21st, 22nd we have winter solstice, in which we have a very short day and a very long night, that is on December 21st, 22nd. ओके, तो जून, अब ये क्या सॉल्स्टिस के बारे में आपको समझाया जा रहा है कि सॉल्स्टिस का मतलब होता है बहुत ही अनइक्वल दिन और रात, यानी या तो दिन बहुत बड़ा होगा, रात बहुत छोटी होगी, या रात बहुत बड़ी होगी, दिन बहुत छोटा होगा। ऐसा कब होता है हमारे साथ? ऐसा जून 21st, 22nd को होता है, जब हमारे पास सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और फिर दिसंबर 21st, 22nd को क्या होता है? बहुत छोटा दिन और बहुत लंबी रात होती है। Now remember, summer solstice in the northern hemisphere, June 21st, 22nd. In winter solstice, the southern hemisphere, the overhead sun on the Tropic of Cancer, which means there will be light for a longer time in the northern hemisphere. Summer solstice में क्या हो रहा है? What is happening? June 21st, 22nd is a winter solstice in the summer hemisphere, southern hemisphere, sorry, and the north overhead sun is on the Tropic of Cancer. तो सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर होगा, तो ज़ाहिरी बात है लंबा दिन होगा, ठीक है, और लाइट देर तक रहेगी। इसी तरीके से जो है वो सॉल्स्टिस, अब हम समर के बारे में, विंटर के बारे में भी पढ़ लेंगे। विंटर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होता है? 21st, 22nd दिसंबर को। नाउ इन समर सॉल्स्टिस में क्या होता है? इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, उस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस हो रहा होता है, ठीक है। यानी दोनों हेमिस्फीयर के आपको पहले बताया ना कि सॉल्स्टिस डिफरेंट है। द ओवरहेड सन इज़ ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सूरज का है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर, विच मीन्स द साउदर्न हेमिस्फीयर विल रिसीव द लाइट फॉर द लॉन्गर,
अब जाहिर बात है जब सूरज बिल्कुल ऊपर होगा तो देर तक सूरज की रोशनी रहेगी, तो उल्टा हिसाब होगा, दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी। तो साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों के सॉल्स्टिस के बारे में आपको बता दिया गया। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी ये वाला एंड हो गया है। ठीक है, आई होप कि सबकी समझ में आ गया होगा। मैंने इंग्लिश उर्दू दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।